हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट फॉर क्लास 7. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज like the video, share the video and subscribe to my channel if you have not done, and also hit the bell icon so that you can get the notification whenever a new video is uploaded. So stay tuned and let's get started with the topic of indicators. तो indicators ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 7th में, 8th में, 9th में, 10th में बहुत हेल्प करता है ये टॉपिक, और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इंडिकेटर्स, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि एसिड्स, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, स्किन के लिए। तो आप सभी चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि वो चीज एसिड है, बेस है, या फिर वो चीज क्या है, उसके लिए आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं। Okay, so basically, how to find the nature of any substance without changing it? So to find the nature of the substance, we use the indicators. So indicators are special substances which have different colors in acidic and basic mediums, and thus they are used to test that whether a substance is acidic or basic in nature. मैं आपको एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ। इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो इस एसिडिक में अलग कलर दिखाते हैं, बेसिक में अलग कलर दिखाते हैं, और इस तरह से हमको पता चल जाता है कि वो जो सब्सटेंस जो हमने टेस्ट करा है वो एसिड है या फिर वो बेस है। सो द इंडिकेटर्स दे आर यूज्ड टू टेस्ट दैट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज बेसिक इन नेचर। आई होप द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स इज क्लियर टू यू। ओके, आज हम बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। अबाउट there are two types of indicators. Basically, we have natural indicators and human made indicators. The natural indicators are those indicators which are obtained from the nature, और जो human made indicators होते हैं वो होते हैं जो हम humans ने laboratories में बनाए होते हैं. They are not obtained from nature. Okay, some examples of the natural natural indicators are turmeric, litmus, China rose petals, red cabbage, etc. These are some naturally occurring indicators, but like phenolphthalein, methyl OH, etc. These are some human-made indicators. Okay. अब आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले आप देख सकते हो एक पीएच स्केल अपनी स्क्रीन पे जो आपको नीचे दिख रहा है. इट इज अ पीएच स्केल. pH scale is a scale which is used for determining that whether a substance is acid or base. pH stands for concentration of H plus ions in a particular substance. Let me repeat. pH वो होता है, it is the concentration of H plus ions in a particular substance. और पीएच हमें हेल्प करता है जानने में कि वो जो सब्सटेंस जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड बाय अ पीएच स्केल. द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 1 to 14. इसमें 1 से 14 की रेंज होती है, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. द pH वैल्यू इज 7 फॉर न्यूट्रल. अगर आपकी pH वैल्यू 7 आती है मतलब वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है. If it is less than 7, it means that the substance is acidic. But if it is more than 7, it means that the substance is a basic substance. Now, I hope the pH scale is clear to all of you. Now we are going to start with the litmus. This is the first kind of natural indicator. Litmus is a natural indicator. The most commonly used indicator is litmus, and it is extracted from lichens. It has a mauve color. Mauve means purple. इसका पर्पल कलर हो जाता है जब हम इसे पानी में डालते हैं. And when it is added to an acidic solution, तो ये रेड हो जाता है. जब एसिड में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब हम इसको बेस में डालते हैं तो फिर ये ब्लू हो जाता है. ये आपको ध्यान रखना है. रेड हो जाता है जब एसिड होता है, और ब्लू हो जाता है जब बेस होता है. It will be in the form of solution or in the form of stripes of paper, which are known as the litmus paper. And litmus paper is the most commonly used.
Generally, it is available as two types of papers, red litmus paper and blue litmus paper. So whenever if you have a substance and you put the litmus paper into it, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. आपके पास एक ग्लास रखा हुआ है, उसके अंदर आपको नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर आप कोई सी भी एक या तो रेड या फिर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, उसकी स्ट्रिप. अगर वो जो स्ट्रिप है अगर वो ब्लू है, इफ यू हैव पुट अ ब्लू लिटमस पेपर, अगर वो ब्लू ही रहती है उस सब्सटेंस के अंदर जाने के बाद, इट मीन्स दैट इट इज अ बेस, क्योंकि वो ब्लू ही है. लेकिन अगर इसका कलर उस सब्सटेंस के पास जाने के बाद, उसके अंदर जाने के बाद अगर वो चेंज हो जाता है, अगर वो रेड हो जाता है, इट मीन्स दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक, क्योंकि एसिड रेड कलर देता है और बेसिक ब्लू कलर देता है लिटमस पेपर पे. तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लिटमस पेपर को यूज करते हैं, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस. अब हम जानते हैं बाकी इंडिकेटर्स के बारे में. So these are some other examples of indicators like turmeric, China rose, and some other also. Turmeric एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसे क्या उसमें भी कलर चेंज होता है. जो बेसिस होते हैं वो येलो टर्मरिक पेपर को रेड करते हैं. आप इस टेबल में देख सकते हो, टर्मरिक टर्न्स red in basic, and in the neutral and acidic substances it remains yellow. Okay, so the basis turns the yellow turmeric paper red, and acidic solution and the neutral substances like the sugar solution, they have no effect. उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता. टर्मरिक का ओरिजिनल कलर येलो होता है, तो फिर वो न्यूट्रल और एसिडिक सब्सटेंसेस में भी येलो ही रहता है. और अगर हम बात करें चाइना रोज इंडिकेटर की, तो चाइना रोज इंडिकेटर में क्या होता है, उसका जो न्यूट्रल होता है वो लाइट पिंक होता है. न्यूट्रल सबसे पहले सब्सटेंसेस होते क्या है, देयर आर दो सब्सटेंसेस, वो ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं. तो चाइना रोज इंडिकेटर में जब आप इसे बेस में डालते हो तो फिर ये ग्रीन हो जाता है, और एसिड में ये डार्क पिंक यानी मजेंटा हो जाता है. If we talk about phenolphthalein, phenolphthalein एक ह्यूमन मेड इंडिकेटर है और ये एक ऑर्गेनिक डाई होती है. It is prepared by dissolving the phenolphthalein dye in alcohol and it is colorless. अगर आप इसको बेस में डालते हो, so the solution turns pink. लेकिन जब आप इसे एसिड में डालते हो, it remains colorless only, as you can see in the table. If we talk about methyl orange, methyl orange is a human made indicator and is a synthetic indicator. इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, और वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में येलो. तो इसको आपको टेबल को ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एंड इफ यू लर्न दिस टेबल you will be able to study the topic of indicators very clearly. ओके, तो आपको इस टेबल को बहुत अच्छी तरह याद करना है. आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल एंड लर्न दिस टेबल, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर क्लासेस. So I hope the topic of indicators is clear to you. So stay tuned, subscribe to my channel, hit the bell icon and wait for the next video. In that we are going to study about the properties of acids and bases, the uses of acids and the uses of bases, and some other topics also. So thank you. Bye bye.